Good morning, students. This is our next lecture on unit number 5. In the previous lecture, we discussed the evaluation of double integration. Now, in this lecture, we discuss about the polar transformation in double integration. Now, transformation to polar coordinates. If we have to evaluate the double integration using the polar form, then there are some steps are given. First step is we have to write down the equation of boundaries from the given integration. We have to write the equation of boundaries. Then after that, second step is we have to change the equation of boundaries by using the in the polar form by using x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. And then we have to draw the region of integration with the help of given boundaries. देन वी हैव टू देखो जब हम कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग एक्स आर कॉस थीटा एंड वाई आर साइन थीटा, देन वी हैव टू टेक अस रेडियल स्ट्रिप, क्योंकि जैसे हम कार्टेशियन में स्ट्रिप लेते हैं पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू वाई, बट इन पोलर फॉर्म में हमारी स्ट्रिप कैसे रहेगी? ऑलवेज रेडियल स्ट्रिप और ट्रायंगुलर स्ट्रिप, एंड दैट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. Then we have to obtain the limits of r and theta. क्यों r and theta? क्योंकि अब हमारा x and y r and theta में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम लिमिट किसके फाइंड करेंगे? r and theta. यहाँ पे हम रेडियल स्ट्रिप लेंगे, इसका मतलब है we first integrate with respect to r and then theta always. एंड देन आपको लिमिट मिल जाएंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा इंटीग्रल है, जो आपका गिवन इंटीग्रल है, उसमें x and y की वैल्यू पुट करेंगे in terms of r and theta, as well as we also put the value of dx dy in terms of r and theta, and which is r dr d theta, and that value is obtained by using the Jacobian. आपको ये जो वैल्यू है dx dy की r dr d theta, ये वैल्यू कैसी आई? विद द हेल्प ऑफ Jacobian. एंड ये आपको Jacobian का टॉपिक जो है वो टोटल टॉपिक m1 में है. देन ये वैल्यू पुट करेंगे. आपको यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है, पोलर फॉर्म में आपकी स्ट्रिप कैसी रहेगी? रेडियल स्ट्रिप रहेगी. यहाँ पे आपको एक ही चॉइस है, स्ट्रिप रेडियल रहेगी. इसका मतलब क्या है कि आपको ऑलवेज इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर पहले करना है और बाद में थीटा करना है. ओके, देन वी सी द एग्जांपल. So student, before taking the example, first we see some equation of circles in polar form as well as in Cartesian form. Equation of circle in Cartesian form is x square plus y square equal to a square. That is the standard equation of circle. And इसके radius center क्या रहेंगे? Center is 0 0, radius is a. Okay. If we convert this circle in polar form by using the substitution, x is r cos theta, y is r sin theta, then what we get here? R square cos square theta plus r square sin square theta equal to a square. Means a क्या बन जाएगा? r square equal to a square means r equal to a. And if the equation of circle is r equal to a in polar form, then what are the center? Center is 0 0, radius is a. ये जो हमारा फर्स्ट सर्कल है कार्टेशियन में, इसका ये पोलर फॉर्म है. ओके. सेकंड है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax. यहाँ पे सेंटर क्या आएगा? a0, रेडियस a. इसको हमने इस पे हम सेंटर रेडियस कैसे निकाले सेकंड सर्कल के? जस्ट वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. एंड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. वहां पे सेंटर क्या रहेंगे? माइनस जी माइनस एफ. और रेडियस क्या रहेगी वहां पे? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस जी स्क्वायर प्लस माइनस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ c. With the help of general equation of circle, we obtain the center and radius of second circle, that is x square plus y square equal to 2ax. And center is 0 0, center is a0, radius is a. Okay. अब हमने इसको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिल जाएगा? r square is x square is r square cos square theta, y square is r square sin square theta, एंड 2a r cos theta. अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा? r इक्वल टू 2a cos theta. अगर r इक्वल टू 2a cos theta, जिसका सेंटर क्या रहेगा? a0, रेडियस a. ओके. सिमिलरली थर्ड x square plus y square equal to 2ay
हाँ, इसके सेंटर क्या आएंगे, सेंटर इज 0 a एंड रेडियस इज a। ओके, तो इसका अगर पोलर फॉर्म मिलता है हमें तो क्या मिलेगा, r इक्वल टू 2a साइन थीटा। साइन है इसका मतलब y कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट अपसेंट आएगा, मतलब 0a रेडियस a। यहाँ पे देखो 2a है, रेडियस a आएगी, और साइन है तो y कोऑर्डिनेट आएगा। सिमिलरली 4x² प्लस y² इक्वल टू ax। हाँ, अब यहाँ पे ax है, यहाँ पे 2ax था, तो सेंटर क्या था हमारा a0, यहाँ पे सेंटर क्या आएगा a/2 0, रेडियस a/2। सिमिलरली पोलर फॉर्म में r इक्वल टू a cos थीटा है, तो सेंटर क्या आएगा a/2 0, रेडियस a/2। आपको याद रखना है cos है तो x कोऑर्डिनेट है, साइन है तो y कोऑर्डिनेट है। देन x² प्लस y² इक्वल टू ay, तो यहाँ पे सेंटर क्या आएगा हमारा 0a/2, रेडियस a/2। देन पोलर फॉर्म में r इक्वल टू a साइन थीटा, सेंटर क्या है 0a/2, रेडियस a/2। ओके, ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद लेंगे हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, नंबर 6, जनरल फॉर्म x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, that is the general equation of circle. And what are the center here? Center is minus g minus f and radius under root of minus g square plus minus f square minus c। हमने जो भी एक सेंटर और रेडियस ऑब्टेन के फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4, 5 के विद द हेल्प ऑफ दैट वन। ओके, ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन और सेंटर रेडियस कैसे आते हैं आपको ये एक बार एक पूरा आपको ध्यान में रखना है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वन वी कैन ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वी कैन ड्रॉ द sketch of the circle. Okay, then we take the example. So students, see the example. Evaluate the integral by using the polar coordinate और evaluate by transforming to polar coordinate. Okay, अब देखो आपको अगर पोलर फॉर्म में बोला है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए तो पोलर में ही सॉल्व करना है। अगर इनकेस आपको एग्जाम्पल में गिवन नहीं है पोलर फॉर्म में करना है तो भी आप पोलर फॉर्म में कर सकते हैं। देखो पोलर फॉर्म में दिया नहीं है तो भी कर सकते हैं, अगर दिया है तो करना ही है। ओके, और पोलर फॉर्म का एक एग्जाम्पल तो एग्जाम में आता ही है। सो फर्स्ट वी सी द एग्जाम्पल, इवेल्युएट बाय ट्रांसफॉर्मिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट। एंड आपको इक्वेशन दिया है इंटीग्रल 0 to 2a इंटीग्रल 0 to अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस x² प्लस y² dx dy। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द गिवन इंटीग्रल। सो I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2a इंटीग्रल 0 to अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस x² प्लस y² dx dy। ओके, which is the given integration. After that what we have to do, then उसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ बाउंड्रीज लिखनी है। then इक्वेशन ऑफ बाउंड्रीज आर, अब इक्वेशन ऑफ बाउंड्रीज आपको लिखनी है, वो कैसे लिखेंगे देखो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, इनर मोस्ट इंटीग्रल। इनर मोस्ट इंटीग्रल की लिमिट क्या है 0 अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस x²। अब देखो यहाँ पे x है, इसका मतलब क्या है इनर मोस्ट इंटीग्रल की जो लिमिट्स है वो किसकी वैल्यू रहेंगी, यहाँ पे x है तो y की वैल्यू रहेगी और यहाँ पे y है तो x की वैल्यू रहेगी। आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y इक्वल टू 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या आएगा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस x²। ओके, यहाँ पे अगर x रहता है तो y इक्वल टू लिखेंगे और y रहता है तो x इक्वल टू लिखेंगे। हमने इनर मोस्ट इंटीग्रल के इक्वेशन तो लिख दिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो आउटर है वो
अब ये अगर y के है तो बचे क्या, x के, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2a. ओके, एंड दीज आर द इक्वेशन ऑफ बाउंड्रीज. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपका ये पार्ट करेक्ट है तो आप आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे अगर x रहता है तो ये y की वैल्यू आएंगी, यहाँ पे अगर y रहता है तो x की वैल्यू आएगी. ओके, मेन है इनर मोस्ट इंटीग्रल, और आउटर तो जो लिया उसका जो बचा है वो ले लेना. देखो अब y इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू दिस वन, x इज 0, x इज 2a. आफ्टर दैट आप इसको अब हमें क्या करना है, ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये 2a है, इस यहाँ पे तो स्क्वायर रूट नहीं है. जस्ट हम क्या करेंगे, ये इसका स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, और स्क्वायर रूट अगर रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो ये हमारा क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, जस्ट रिमूव द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट हम क्यों रिमूव कर रहे हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि हमें आगे जाके इसको सॉल्व करना है. देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, एंड विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब देखेंगे आगे हम. सबसे पहले हमने क्या किया, वी राइट द इक्वेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड देन रिमूव द स्क्वायर रूट. ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट, वी हैव टू evaluate by using the polar coordinate. So to change, by changing to polar coordinate, by changing to polar coordinate, हमें इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है. by changing to polar coordinate we put, हम क्या करेंगे, we put x is equal to r cos theta, y equal to r sin theta, और dx dy equal to r dr d theta. ये वैल्यू पुट करेंगे. क्यों, क्योंकि हमें इसको पोलर में कन्वर्ट करना है. सो अब सबसे पहले हम लिमिट को पोलर में कन्वर्ट करेंगे, बाद में रीजन ड्रॉ करेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे. ओके, अब देखो कन्वर्ट करना है, ये y इक्वल टू 0 है, यहाँ पे तो कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है. अब हम ये सर्कल जो है इसको पुट करेंगे, x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा. नाउ और so that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax. ये क्या बनेगा हमारा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू नॉट वाई स्क्वायर, r स्क्वायर 2ar cos theta. Okay, just we put x as r cos theta, y as r sin theta. Taking r square common from left hand side, we get cos square theta plus sin square theta is equal to 2ar cos theta. Okay, then cos square plus sin square is 1. So r square equal to 2ar cos theta. So it become r get cancel, r equal to 2a cos theta, and r equal to 2a cos theta क्या है, which is the equation of circle, which is equation of circle. इसके सेंटर क्या आएंगे, देखो हमने इसके पहले ही देखा है, having center a0 and radius क्या है इसकी, and radius is a. ओके, फ्रॉम सेकंड से पहला तो y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, सेकंड से मिल गया. अब थर्ड देखो x इज 0 है, यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला. देन उसके बाद देखेंगे r x इज इक्वल टू 2a एंड x इज इक्वल टू 2a, पोलर में कन्वर्ट करो इसको भी. अब ये क्या बनेगा, r cos थीटा इक्वल टू 2a, and r cos theta equal to 2a means what is the value of r? R is equal to 2a upon cos theta. 2a upon cos theta. So what is r? R is 2a sec theta. Okay.
अब हमें रीजन ड्रॉ करना है। अब देखो रीजन के लिए तो आपको अब हमें रीजन ड्रॉ करना है यहाँ पे। हमारा रीजन हमें क्या मिल गया यहाँ पे, सर्कल, सेंटर A0, रेडियस A। सेंटर A0 है, इसका सेंटर A0 मतलब कहाँ पे आएगा, लाइज ऑन दी राइट ऑफ दी ओरिजिन। तो यहाँ पे सेंटर आएगा हमारा A0। और रेडियस A है, मतलब ये भी डिस्टेंस से आएगा, ए भी डिस्टेंस से आएगा, तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। सेंटर A0, रेडियस A। अगर रेडियस A है तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी, 2a, 0। ओके, एंड दैट इज सर्कल। ये सर्कल कौन सा है हमारा, x² + y² = 2x, x² + y² = 2x। और पोलर फॉर्म में क्या है, एंड पोलर फॉर्म में सर्कल क्या है हमारा, ये r = 2a cos थीटा, r = 2a cos थीटा। ओके, हमें इसका पोलर फॉर्म ही चाहिए, r = 2a cos थीटा पोलर फॉर्म है, और कार्टेशियन फॉर्म क्या है, x² + y² = 2x। ओके, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा रीजन दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दैट रीजन वी हैव टू ड्रॉ द स्केच ऑफ द रीजन, स्केच ऑफ इंटीग्रेशन। देखो हमारे लिमिट क्या थे, y = 0, y = 0। y = 0 मतलब क्या आएगी हमारी x एक्सिस a, ये y = 0 है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको रीजन जो ड्रा करना है वो रीजन ड्रा कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ गिवन लिमिट्स। आपके जो भी लिमिट्स है कार्टेशियन के, उसका यूज करके ही करना है। लेकिन हमें यहाँ पे सेंटर रेडियस फाइंड करने के लिए पोलर फॉर्म इजी हो रहा है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करने के बाद सेंटर रेडियस फॉर्म किए। ओके, y 0, उसके बाद सर्कल, नेक्स्ट क्या है, x = 0, x = 0 क्या आएगा, y एक्सिस, सो दैट इज x is 0। एंड देन नेक्स्ट क्या है, x = 2a, x = 2a क्या आएगी हमारी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2a 0, क्योंकि x = 2a लाइन है। ओके, ये लाइन है हमारी x = 2a, और x = 2a लाइन पोलर फॉर्म में क्या बन गई, r = 2a sec थीटा। ओके, अब देखो हमारा रीजन क्या है, y 0 मतलब x एक्सिस, x is 0 मतलब y एक्सिस, उसके बाद द लाइन एंड द सर्कल, एंड आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय y = 0 भी उसमें कवर होना चाहिए, x = 2 ले लाइन भी कवर होनी चाहिए, और x = 0 लाइन भी कवर होनी चाहिए, और सर्कल भी कवर होना चाहिए। मतलब the region of integration is bounded by all the 4 equations. And so what is our region? So region of integration is upper half of the circle. अपर हाफ ऑफ द सर्कल ही हमने क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि उसमें x एंड y 0 है, दोनों के लोअर लिमिट 0 है। अगर लोअर लिमिट 0 रहते तो इसका मतलब क्या है, रीजन इज अबोव द y एक्सिस एंड राइट ऑफ द x एक्सिस। ओके, इसमें पूरा सर्कल कवर नहीं होगा। अगर पूरा सर्कल हमारा कवर कब होता है, जब हमारे लिमिट्स निगेटिव टू पॉजिटिव रहेंगे, तभी पूरा सर्कल कवर होगा। यहाँ पे x एंड y 0 है, y 0 है मतलब अबोव दी x एक्सिस, x 0 है मतलब राइट ऑफ दी x एक्सिस, एंड ए लाइन तो है, लाइन तो कवर हो जाएगी इस पे 0 to 2a, और सर्कल। सो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज दैट शेडेड पोर्शन। ओके, now we have to convert into polar form. So what we have to do, we have to take a radial strip, always starting from origin, and that is a radial strip. So अब देखो हमारी स्ट्रिप रेडियल है इस शेडेड रीजन में, तो हमारे लिमिट क्या आएगी अब यहाँ पे, देखो हमारी लिमिट क्या आएगी यहाँ पे, कैसे हमारा r वैल्यू होगा,
take a radial strip starting from origin. So r varies from, r कैसे वैरी होगा हमारा, देखो स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पे, ओरिजिन पे. सो r varies from r इक्वल टू 0 टू अपर, स्ट्रिप का अपर एंड कहाँ पे है, सर्कल पे, और सर्कल पे r की वैल्यू क्या है, r इक्वल टू 2a cos थीटा. सर्कल पे r की वैल्यू है 2a cos थीटा. सो व्हाट इज द अपर लिमिट, r इक्वल टू 2a cos थीटा. ओके, देन थीटा वेरीज फ्रॉम. अब देखो इस शेडेड पोर्शन में थीटा कैसे वेरी होगा, थीटा इक्वल टू, देखो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, थीटा वेरीज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ऐसे वेरी होगा. और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रहती है, 0, और यहाँ पे क्या आएगी, पाई बाय 2. सो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेरी हो रहा है हमारा थीटा. So theta varies from 0 to pi by 2. So we get the limits here. Now the given integral I equal to, अब देखो हमारा इंटीग्रल कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कार्टेशियन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. हमारा यहाँ का पार्ट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनेगा हमारा, आर स्क्वायर. और dx dy क्या रहेगा, आर dr d थीटा. ओके, और यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है. सो पहले क्या वेरी होगा, r. तो लिमिट क्या आएगी, इनर मोस्ट इंटीग्रल के r इज 0 टू r इज 2a cos थीटा, और आउटर मोस्ट इंटीग्रल के लिमिट क्या आएंगे, थीटा इज 0 टू पाई बाय 2. ओके, देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट. हमें इसको इंटीग्रेट करना है. देन इट बिकम आई इक्वल टू थीटा इज 0 टू पाई बाय 2 कीपिंग एज इट इज, आर इक्वल टू 0 टू 2a cos थीटा. ओके, देन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब dr d थीटा. सो इट बिकम थीटा इज 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ पे r रेस टू पावर 3 का इंटीग्रल आएगा, r रेस टू पावर 4 बाय 4, लिमिट है 0 टू 2a cos थीटा इंटू d थीटा. ओके, देन इट बिकम 1 बाय 4, तो कांस्टेंट है हमारा. इंटीग्रल थीटा इज 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा, r के अपर लिमिट 2a टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, 2a cos थीटा टू द पावर 4, माइनस लोअर लिमिट तो 0 आएगा, इंटू d थीटा. सो वी गेट हियर 1 बाय 4, 0 टू पाई बाय 2, 2 टू द पावर 4 क्या आएगा, 2 टू द पावर 4 इज 8 16, a टू द पावर 4 cos to the power 4 theta d theta. Okay, now we have to integrate it. It become 16 by 4 is 4, 4a to the power 4, integral 0 to pi by 2 cos raised to power 4 theta d theta. Okay, अब देखो स्टूडेंट्स, आपको इसका इंटीग्रल फाइंड करना है cos रेज़ टू पावर 4 का. मैंने आपको जब हमने गामा बीटा का टॉपिक लिया था आपको बताया था कि जो रिजल्ट है 0 टू पाई बाय 2 वाला उसका हम डबल और ट्रिपल में यूज करेंगे. तो अब यहाँ पे इसका यूज होगा. इसका इंटीग्रल करने के लिए हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम उसका रिजल्ट लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. क्या था हमारा वो रिजल्ट, देखो दैट रिजल्ट इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos रेज़ टू पावर p थीटा sin रेज़ टू पावर q थीटा d थीटा इक्वल टू क्या था रिजल्ट, गामा ऑफ
p plus 1/2 gamma of q plus 1/2 upon 2 times gamma of p plus q plus 2 divided by 2. And with the help of that result, we can directly simplify the integral. देखो क्या आएगा हमारा इंटीग्रल 4a to the power 4 into cos, मतलब cos की टर्म है यहाँ पे, तो p क्या आएगा हमारा 4, तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी 4 plus 1/2 into साइन की टर्म अपसेंट है, मतलब q की वैल्यू क्या रहेगी 0 plus 1/2 अपॉन 2 times gamma of 4 plus 0 plus 2 upon 2. Okay, so it becomes 4a to the power 4 integral 4 plus 1/2, that is 5/2, gamma of 1/2 upon 2 into gamma of 4 plus 2 6, 6/2 is 3, gamma of 3. Okay, now we solve it. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. देखो 4a to the power 4 इक्वल टू इंटू gamma of 5/2 क्या आएगा, gamma of 5/2 इज 3/2 plus 1. आपको एक से इसको डिक्रीज करना है. 3/2 1/2 रूट पाई, gamma of 1/2 आएगा रूट पाई, और यहाँ पे gamma 1/2 अगेन रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू gamma of 3. gamma of 3 क्या आएगा हमारा, gamma of यानी n-1 फैक्टोरियल, मतलब ये क्या आएगा 2 फैक्टोरियल. सो इट बिकम 4a to the power 4 3/4 न्यूमरेटर 3/4 रूट पाई पाई डिवाइडेड बाय 2 into 2 4 और 4 गेट कैंसल, 4 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या आएगा 3/4 pi a to the power 4, and which is the solution of the given integration. Okay student, in this way we get the solution. Okay, then we see the next example. So students, see the next example. Change the integral into polar form and we have to evaluate it. Okay, आपको सेम मेथड अप्लाई करनी है यहाँ पे भी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, we denote the integral as I equal to the integral 0 to 1 0 to x plus y dx dy. Okay, then with the help of equation limits we write down the equation of boundaries. Then equation of boundaries are, what are the equation of boundaries here? इनरमोस्ट लिमिट में क्या है x है, तो ये किसकी वैल्यू रहेंगी y की वैल्यू, y is 0 y is x. ओके, और ये क्या आएगा आउटर मोस्ट x is 0 x is 1. तो हम इसको पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो हम रीजन भी ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट तो कहीं पे भी नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली रीजन बना लेंगे इसका. y is 0 मतलब क्या आएगा यहाँ पे x एक्सिस, y is 0, यहाँ पे y 0 रहेगा. y is equal to x क्या रहेगा, that is the line passing through the origin. y is equal to x. ओके, उसके बाद x is 0 मतलब y एक्सिस, एंड x is 1 क्या आएगी, that is a line parallel to y axis, that is a line x is equal to 1. ओके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट क्या आएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे, x is 1 है तो 1, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे, देखो x is equal to 1 है यहाँ पे, तो y is equal to क्या आएगा 1, so 1 1. And what is the region of integration, bounded by the x axis line, y equal to x line, and y axis. So region of integration is bounded by all these 4 equations. So that is our region of integration. Okay, अब हम इसको पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे.
और इक्वेशन भी पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे और लिमिट फाइंड करेंगे। सो इसके बाद by changing to polar coordinates, by changing to polar coordinates, put x is equal to r cos theta, y equal to r sin theta, dx dy क्या है आर डी आर डी थीटा। ये आपको लिखना है अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो। सो यहाँ पे देखो पहला y इक्वल टू 0 था तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पोलर फॉर्म में। सेकंड है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स पोलर में क्या बन जाएगा r साइन थीटा इक्वल टू r कॉस थीटा। ओके, तो r साइन थीटा equal to r cos theta, it become r cancel, sin theta upon cos theta 1, so it become r 1 is equal to sin upon cos cot और tan theta equal to 1, ऐसे भी लिख सकते हैं tan theta equal to 1। ओके, r sin theta equal to r cos theta मतलब साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 1 मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद देखो हाँ x इज 0, इसकी जरूरत नहीं, x इज 1 है एंड x इज इक्वल टू 1 क्या रहेगा हमारा r cos थीटा इक्वल टू 1। सो व्हाट इज r इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा। तो हमारी ये लाइन क्या बन गई x इज इक्वल टू लाइन क्या बन गई पोलर फॉर्म में r इक्वल टू सेक थीटा और y इक्वल टू x लाइन क्या बन गई हमारी पोलर फॉर्म में स्टूडेंट्स, ये लाइन बन गई हमारी tan थीटा इक्वल टू 1। ओके, हमारे चारों ये सब लाइन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब हमें ड्रॉ करना है रेडियल स्ट्रिप। नाउ इन द शेडेड रीजन we have to take a triangular strip or radial strip and starting from origin. Now draw radial strip starting from origin, that is the radial strip or triangular strip. Now अब देखो स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पे है, हम लिमिट लिखेंगे यहाँ पे in the shaded region or take a radial strip starting from origin, so that r कैसे वैरी होगा हमारा, देखो स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पे है ओरिजिन पे, सो r वैरीज फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू स्ट्रिप का अपर एंड कहाँ पे है लाइन पे, x इज इक्वल टू 1 लाइन पे और यहाँ पे r की वैल्यू का है क्या इस लाइन पे r इज इक्वल टू सेक थीटा। सो व्हाट आर द अपर लिमिट r इक्वल टू सेक थीटा। ओके, थीटा वैरीज फ्रॉम, अब देखो थीटा कैसे वैरी होगा शेडेड रीजन में, थीटा कैसे वैरी होगा, कहाँ से कहाँ तक वैरी होगा, थीटा वैरीज फ्रॉम x एक्सिस टू लाइन y इक्वल टू x, इस लाइन तक वैरी होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा का अपर लिमिट देखो अब क्या आएगा, अपर लिमिट कहाँ पे आएगा इस लाइन पे y इक्वल टू x लाइन पे एंड y इक्वल टू x लाइन पे tan थीटा की वैल्यू क्या है 1 और थीटा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो व्हाट इज थीटा, that is tan inverse of 1 and what is tan inverse of 1, that is pi by 4. So what is theta at the line y equal to x, theta is pi by 4, so theta varies from 0 to pi by 4. Okay students, अब हमें लिमिट मिल गए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इवैल्यूएट करना है। सो therefore इंटीग्रल आई डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर, हमारा फंक्शन क्या है
x प्लस वाई dx dy। अब देखो यहाँ पे लिमिट इनर मोस्ट इंटीग्रल की लिमिट क्या आएंगे 0 टू सेक थीटा, 0 टू सेक थीटा, और आउटर इंटीग्रल की लिमिट 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4। और फंक्शन x क्या है हमारा r cos थीटा प्लस y r sin थीटा इंटू व्हाट इज dx dy r dr d theta। ओके, नाउ वी सिंप्लीफाई इट। I equal to 0 to pi by 4, I equal to 0 to pi by 4, 0 to sec थीटा सेकेंड वन। अब देखो यहाँ से r कॉमन निकलेगा, r इंटू कॉस थीटा साइन थीटा और ए r इंटू r क्या बनेगा r स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा dr d थीटा। ओके, then first we have to integrate with respect to r। हमें r का इंटीग्रल फाइंड करना है, देन थीटा का। तो यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा और r स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा r क्यूब बाय 3, और 0 टू सेक थीटा लिमिट आएंगे और cos थीटा प्लस साइन थीटा ये एज इट इज रहेगा क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू r है, सो r स्क्वायर इंटू डी आर का इंटीग्रल आएगा और ए टर्म कांस्टेंट रहेंगे। ओके, देन इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट सेक थीटा है तो क्या आएगा सेक क्यूब थीटा अपॉन 3, लोअर लिमिट के लिए 0 आएगा, इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा। Okay, now 1 by 3 as a constant, taking outside the integral 0 to pi by 4। अब क्या करेंगे हम सेक क्यूब थीटा से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेक क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, then simplify it। 1 by 3 into इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4। अब देखो सेक क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक क्यूब थीटा क्या बनेगा 1 अपॉन कॉस क्यूब, सेक क्यूब इज 1 अपॉन कॉस क्यूब इंटू कॉस थीटा, सो कॉस कॉस कैंसल, सिंपली क्या बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या है सेक स्क्वायर थीटा, सो फर्स्ट टर्म इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड क्या है सेक क्यूब मीन्स 1 अपॉन कॉस क्यूब इंटू साइन थीटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सो साइन अपॉन कॉस tan, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, सो सेकेंड टर्म आएगी प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट 1 by 3। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रल क्या आएगा हमारा टैन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल टैन थीटा प्लस अब सेकंड टर्म देखो क्या है, सेकंड टर्म इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा, ऐसे टर्म है। यहाँ पे देखो टैन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर n, एंड सो व्हाट इज द फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव है तो फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे एफ रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसका tan का पावर क्या है 1, सो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा आपका रिजल्ट
10 to the power 1 plus 1 is 2 upon 2 and limit as 0 to pi by 4. ओके, ये फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे f dash of x into f raised to power n, that is f raised to power n plus 1 upon n plus 1, क्योंकि tan का डेरिवेटिव प्रेजेंट है. So apply the limits. 1 by 3 into upper limit 10 pi by 4. 10 pi by 4 is 10 pi by 4 plus 10 square pi by 4 upon 2. और लोअर लिमिट के लिए क्या बन जाएगा? tan 0 tan 0 tan 0 0. So it become 1 by 3. 10 pi by 4 is 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2 3 by 2. और 3 by 2 into 1 by 3 1 by 2, and which is the required solution. Okay students, in this way we get the solution of the given integration. Okay, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपको होमवर्क में. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपको घर पे होमवर्क है. इवैल्यूएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट. आपको यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ बाउंड्रीज लिखनी है. बाउंड्रीज क्या आएंगी हमारी? देखो, इनरमोस्ट वैल्यू x की है, मीन्स y की वैल्यूज आएंगी और ये x की वैल्यूज आएंगी. इसका यूज करके आपको रीजन ड्रॉ करना है. यहाँ पे सर्कल आता है, इसलिए हम इसको पोलर में सॉल्व करके सेंटर रेडियस अगर फाइंड करते तो बेटर रहता है. उसके बाद इसका रीजन देखना कौन सा. रीजन आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा वैरी होगा हमारा 0 to pi by 2 और r कैसे वैरी होगा? ओरिजिन से सर्कल की बाउंड्री तक. और इसका आंसर आएगा आपका 4 by 3. आपको ये सॉल्व करना है और बाद में क्रॉस चेक करना है कि आपकी लिमिट ये आते हैं कि नहीं है. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर we see our next topic. So thank you.